ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ। आज के सुबह हमारे सब्बत दिन के आराधना को ಈ ಒಂದು ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಅಯ್ಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಕರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಆರಾಧನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ದೇವರೇ, ಈ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದೇವರೇ, ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಕೈಲೊಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ। ನೀನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಿಯು ಮಧ್ಯು ಅಂತಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್। ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ರಾಗದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಆರಾಧನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 105ನೇ ಒಂದು ರಾಗ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಾವು ಆಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಜೀವವಾಕ್ಯದ ಗಾನವ ಇಂಪಾಗಿ ಆಡಿರಿ, ದೇವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿವರ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳಿರಿ, ಶುಭ ವರ್ತಮಾನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರ, ಆನಂದವೇ ಆನಂದವೇ ಸದ್ವೇದ ವಾಕ್ಯವು, ಆನಂದವೇ ಆನಂದವೇ ಸದ್ವೇದ ವಾಕ್ಯವು, ದೇವ ವಾಕ್ಯವ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಕೊಟ್ಟನು, ಕೇಳಿ ವಾಕ್ಯವ ಪಾಪಿಯೇ ವಿಧೇಯನಾಗಿರು, ಮೋಕ್ಷ ಲೋಕ ಮಾರ್ಗ ಉಚಿತಾರ್ಥದಾನ, ಆನಂದವೇ ಆನಂದವೇ ಸದ್ವೇದ ವಾಕ್ಯವು, ಆನಂದವೇ ಆನಂದವೇ ಸದ್ವೇದ ವಾಕ್ಯವು, ಸಾರುವಾಕ್ಯ ವಚನಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಾರೂಪ ಪದಮನನಿ ಪಾಪಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭ್ರಮಣಿಯೇಸು ಕಾಯುತ್ತೀರ್ಪನೆಂದು, ಆನಂದವೇ ಆನಂದವೇ ಸದ್ವೇದ ವಾಕ್ಯವು, ಆನಂದವೇ ಆನಂದವೇ ಸದ್ವೇದ ವಾಕ್ಯವು। हालेलुया, देवर नाम के स्तोत्रवागली, प्रभु की महिमा हो। हम सभी मिलकर इस समय और एक गीत गाएंगे। हमारे जीवन में केवल परमेश्वर की एक आधार है, उसके बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है। इस बात को याद करते हुए हम सॉन्ग नंबर 183 आधार ನೀವೇಕಯ ಆಧಾರ ನೀವೇಕಯ ಈ ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಆಧಾರ ನೀವೇಕಯ ಆಧಾರ ನೀವೇಕಯ, ಎನ್ ಬಾಳ್ ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿರಲು ಆಧಾರ ನೀವೇಕಯ, ಎನ್ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿರಲು
ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ. ಮತಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮರೆತು ದೇವ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಾದಾಗೆ. ಮತಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮರೆತು ದೇವ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಾದಾಗೆ. ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೊಂದಿ ಬಾಳಾಳು ಎನಗೆ ಬಲವನ್ನು ನೀ ನೀಡೆಯ. ನೀನಾತ್ಮ ಹೊಂದಿ ಬಾಳಾಳು ಎನಗೆ ಬಲವನ್ನು ನೀ ನೀಡೆಯ. ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ, ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ. ಎನ್ ಬಾಲ ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿರಲು ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದೇವ ತೀರಾದ ಭಯದಲ್ಲಿರಲು. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದೇವ ತೀರಾದ ಭಯದಲ್ಲಿರಲು. ಅಭಯವ ನೀಡಿ ದಾರಿಯ ತೋರಲು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನೀ ಬಾರಯ. ಅಭಯವ ನೀಡಿ ದಾರಿಯ ತೋರಲು ಹತ್ತಿರಗೆ ನೀ ಬಾರಯ. ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ, ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ. ಎನ್ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿರಲು ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ. ಎನ್ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೇ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಹಸ್ತವು ಎನಗೆ. ಎನ್ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೇ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಹಸ್ತವು ಎನಗೆ. ಕಷ್ಟದ ನೀಡಿ ಮುಪ್ಪಿನವರೆಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡೆಯ. ಕಷ್ಟದ ನೀಡಿ ಮುಪ್ಪಿನವರೆಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡೆಯ. ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ, ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ. ಎನ್ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿರಲು ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ. ಎನ್ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿರಲು ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ, ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆತನವನ್ನು ಜೀವದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಇದು ದೇವರ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಾರ್ದೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಾವು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಒಂದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ದೇವರ ಮಗನು, ಮಗಳಾಗಿರಬೇಕಂತಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೋರಿಕೆ ಆಗಿ ಉಂಟು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಶಾಲೋಮ್ ಸಭೆ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಮಿಸಸ್ ಕಮಲಮ್ಮ ತಿಮೋತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಇವರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಅವರನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಭಿಕರಾದಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಬ ದಿನದಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರುಣಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ನೀನು ಸರ್ವೋನ್ನತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವು ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು ದೇವರೇ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಕೂಡಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರೇ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಉನ್ನತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸಹೋದರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಮಿಸೆಸ್ ಕಮಲಮ್ಮ ತಿಮೋತಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರೇ. ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ದೇವರೇ ಅವರು ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ ದೇವರೇ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನೋ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕೃಪೆ ನೀನು ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. ಅನೇಕ ಜನರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಆಲಿಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗಳ ಜೀವಿತವು ನೀನು ಮುಟ್ಟಿ ದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವು ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರೇ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ ಘನ ವೈದ್ಯನಾಗಿರುವಂತ ದೇವರು ನೀನು ಆಗಿದ್ದೀಯ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವರೇ. ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಆಗಿರುವಂತ ತಿಮೋತಿ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಮಗ ಜಸ್ಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಗಳು ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಗು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅವರ ಸಂಗಡ ನೀಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀನು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಆಲಿಸು. ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ದೇವರೇ ನೀನು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡು ದೇವರೇ. ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಜೀವಿತವು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೇಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಘನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಒಬ್ಬನ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಸಂಧಿ 14ರಿಂದ 26 वचन। याकूब का पत्र उसके दूसरे अध्याय के 14वें वचन से लेकर 26 वचन तक। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 14 to 26। सचमुच परमेश्वर महान है, श्रेष्ठ है और सर्वोन्नत परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जिसने हमें जीवितों के संख्या में रखकर आज हमें एक आशीष देकर इस सब दिन के आराधना में हमें भाग लेने में उन्होंने सहायता की है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी लोग ठीक है, चंगे हैं और भले हैं, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। और इस समय हम प्रभु के वचन को मनन करने के लिए जो वचन हमने चुना है वो अभी मैंने बताया है। पिछले 2 संडे हम परमेश्वर की आज्ञाकारी जीवन के बारे में वचन को मनन कर रहे हैं। पहला संडे हमने देखा किस तरह से यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता का आज्ञाकारी बेटा बनकर वो इस संसार में जिया करके हमने देखा। और गए संडे सेकंड संडे जो हमने पतरस के जीवन से हमने ये सीखा या सुना कि कैसे पतरस निराश और डिसअपॉइंटेड टायर्डनेस में था
ऐसे में भी जब यीशु मसीह से 3 बार से बातें किया, कुछ कहा, वैसे 3 बार उसने आज्ञाकारी दिखाते हुए परमेश्वर की आशीष अनुग्रह उसके जीवन में पाया करके हम देखे हैं। मेरे प्रियो, आज भी हम उसी टाइटल में परमेश्वर के आज्ञाकारी जीवन जीना, इसी के आधार पर आज भी हम परमेश्वर की वचन को मनन करने वाले हैं। पिछले संडे हमने देखा कि आज्ञाकारी जीवन, ओबीडिएंट लाइफ टू गॉड का मतलब क्या है, उसका क्या रहस्य है, इस बात को हमने पिछले संडे देखा, जो मैं अभी आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ओबीडियंस, आज्ञाकारी कहने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर की वचनों को या परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले, उसे स्वीकार करने वाले और उसको हमारे जीवन में, कार्य में उसे करने वाला वो आज्ञाकारी जीवन होता है करके हमने देखा है। इस ओबीडियंस को, इस आज्ञाकारी को इब्रू भाषा में शामा कहता है, जिसका अर्थ यही होता है कि परमेश्वर की बातों को सुनना और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना या जीना, ये इसका मतलब होता है। मेरे प्रियो, हमने ये भी देखा कि अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे स्वीकार कर और उसके अनुसार हम प्रैक्टिकली हमारे कार्य हम करते रहेंगे, करते जीते जाएंगे, तो हमें ये दर्शाता है, ये हमें पहचान देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से बहुत ही प्रेम करने वाला, सच्चा प्रेम करने वाले भक्त है करके ये हमें दिखाता है। दूसरा में ये दिखाता है कि सचमुच हम परमेश्वर के विश्वासियों है करके ये हमें दिखाता है। और तीसरा में ये दिखाता है कि सचमुच हम अपने पापों के पश्चाताप करते हुए हम अपने पाप के लिए मरकर प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन पाकर एक नई सृष्टि बनकर जी रहे हैं। ये बातें हमें दर्शाता है। मेरे प्रियो, आप सभी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग इस संसार में ये कहते हैं कि मैं आज्ञाकारी बेटा हूँ, मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ, मैं आज्ञाकारी बेटी हूँ करके कहता है। ठीक है, अगर आप आज्ञाकारी है, प्रभु को धन्यवाद हो। आज्ञाकारी जब हम कहते हैं, ये 3 बातें वहाँ पर हम सुनते हैं, सुनने वाले, समझने वाले, एहसास करने वाले और उसे करने वाला। लेकिन बहुत से बार हम लोग ये गलत सोच लेते हैं, सिर्फ सुनना और स्वीकार करने से ही हम आज्ञाकारी बनते हैं। ये इनकम्प्लीट है, ये ऐसा नहीं होता। जब हम सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, वो हमें आज्ञाकारी बनाता है। जब हम उसे स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो हमें आज्ञाकारी बनता है। और इसके साथ ही साथ हम उसे अपने जीवन में उसको अनुसरण करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, जीते हैं, बोलते हैं, फिरते हैं, हमारा चाल चलन रहता है, तभी हमारा आज्ञाकारी जीवन वहां पर कंप्लीट होता है। इसलिए हमारा एक्शंस, हमारा करना, हमारा कर्म जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है करके हम देखते हैं। इसलिए याकूब के पत्र उसके 2 अध्याय के 26 वचन में हम देखते हैं, For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from work is dead. यानी कि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। जैसे हमारे शरीर जो है, इसके अंदर अगर आत्मा नहीं है तो ये शरीर एक मरा हुआ के समान है करके प्रभु का वचन हमें कहता है। वैसे ही हमारे सुनना और हमारे विश्वास करना, ग्रहण करना, सिर्फ उससे ही अगर हम ओबीडिएंट हैं या फिर आज्ञाकारी हैं, ये मरे हुए समान है। अगर हमारे अंदर कार्य नहीं है, अगर हम करते नहीं हैं, ये तभी हो सकता है जब हम सुनकर उसे स्वीकार कर उसे हम चलते हैं। वही तभी वो कहता है कि वो जीवित है, वो आज्ञाकारी जीवन है। मेरे प्रियो,
आज हम अब्राहम के जीवन से ऐसे 3 बातें देखेंगे कि वो परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी जीवन जीते जीते उसने ऐसे अच्छे अच्छे काम किए जिससे परमेश्वर की आशीष उसके जीवन पर आया करके हम देखते हैं। इस बात को मैं ना भूले कि आज मेरे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, आप अपने पारिवारिक जीवन में, आपके खुद के जीवन में, आपके हर एक कामकाज में परमेश्वर की अगर आशीष आना है, परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी सिर्फ केवल सुनकर उसे स्वीकार करना नहीं, बल्कि अपने जीवन में अनुसरण करना है, उसके अनुसार चलना है। तभी आपके जीवन में, हमारे जीवन में हम आशीषों को पाते हैं करके हम देखते हैं। इसलिए आज हम अब्राहम के जीवन से देखते हैं कि कैसे अब्राहम ने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी दिखाते हुए क्या क्या उसने कार्य किया, उस कार्य के वजह से उसने आशीष पाया है। इस बात को हम अब्राहम के जीवन से हम देखेंगे। पहली बात हम देखते हैं, अब्राहम obedient to God led him to leave homeland। हिंदी में इस तरह से है, परमेश्वर के प्रति अब्राहम की आज्ञाकारिता ने उसे स्वदेश छोड़ दिया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, हमारे घरों में परमेश्वर हमें संतान दी है। जब कभी माँ बाप अपने बच्चों को कुछ बोलते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ ज्ञान की बातें सुनाते हैं, तब बच्चे अगर उसे नहीं सुनते हैं और उसके आज्ञाकारी नहीं बनते हैं माँ बाप के, तो माँ बाप को बहुत ही अलग महसूस होता है और ये सोच में पड़ जाता है कि मेरा बेटा या मेरे बेटी मेरे बात क्यों नहीं सुनती है। और इस तरह से हम गुस्सा होते हैं और हम क्या करते हैं, बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, ताकि डर से वो बातें माँ बाप की आज्ञाकारी बनने के लिए। और इस तरह से हम देखते हैं जब बच्चा आज्ञाकारी बन जाता है कितना खुश होता है करके हम देखते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे हर दिन, हर पल, हर समय हमसे बातें करता है, उसके वचन के जरिए से, उसके दासों के जरिए से। हर संडे सभा मंदिर में जब बैठकर प्रभु के वचन को मनन करते हैं, प्रभु वचन पढ़ते हैं, प्रार्थनाओं में जाकर बैठकर हम प्रभु के वचन मनन करते हैं, या फिर वीडियो सुनते हैं या यूट्यूब में सुनते हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर वो क्या करता है, वो हमसे बातें करता है, वो हमसे कुछ कहता है। मेरे प्रियो, अगर हम उसके आज्ञाकारी ना बने, उसके बात को हमारे जीवन में अनुसरण न करें, परमेश्वर नाराज होता है, परमेश्वर को हम दुखित करते हैं, परमेश्वर को हम अप्रसन्नित करते हैं करके हम देखते हैं। वैसे ही हमारे अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं, जब अब्राहम के जीवन को देखते हैं, पहली बार जब परमेश्वर ने उनसे बातें किया और उसको आज्ञा दिया करके हम देखते हैं, वो आज्ञा हम देखते हैं कि 12वें अध्याय, उत्पत्ति के 12वें अध्याय के पहले वचन में, दूसरा वचन में हम देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ता हूं आप लोग को हिंदी में तो आसान पड़ेगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा करके परमेश्वर ने एक क्लियर कट, एक आज्ञा, एक कमांडमेंट, एक ऑर्डर अब्राहम को दिया करके हम देखते हैं। कहता है, लीव योर नेटिव प्लेस, तू अपने देश को छोड़ करके बोलता है, अपने जन्मभूमि को छोड़ करके बोलता है, और तो अपने पिता के घर को छोड़कर, उस देश को छोड़कर तू चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा करके कहता है। परमेश्वर जो है अब्राहम को ये आज्ञा देता है, और तुरंत हम देखते हैं कि 14वां वचन में हम देखते हैं कि अब्राहम जो है परमेश्वर का आवाज को सुना, परमेश्वर के आज्ञा को सुना, और उसने तुरंत परमेश्वर का आज्ञाकारी बना करके हम देखते हैं। और हम देखते हैं, देखो 4 वचन में हम देखते हैं क्या करते हैं अब्राहम। यहोवा के इस वचन को सुनकर
अब्राहम चला करके हम देखते हैं, और लूत की उसके संग चला। और जब अब्राहम अराम देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था करके हम देखते हैं। अब्राहम जो है परमेश्वर का वचन केवल सुना नहीं, बल्कि उसने स्वीकार किया और उसने खरा करके हम देखते हैं। उसके अपने जीवन में उसको काम के जरिए से वो किया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, 5वें वचन में हम देखते हैं अब्राहम ने क्या किया। अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को साथ में लिया, उसका भाई का बेटा लोट को उसने साथ में लिया। जो भी संपत्ति उसके पास था वो सारी संपत्ति को लेकर उसने अपना जन्मभूमि, अपने देश, अपने रिश्ते नाते, सारे लोगों को सब कुछ छोड़कर उस परमेश्वर के जो बोले हुए आवाज को सुनकर उसने क्या किया, उस देश से, अरन से निकल कर वो 5वें वचन में भी हम पढ़ते हैं कि वो कानान के लिए निकल गया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, हम इस बात को जानना है, इस बात को समझना है कि परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर वो चला, कार्य किया। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया करके हम देखते हैं। परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम ने उसके वचन, उसके आज्ञा का पालन किया, और वैसे उसे सब कुछ छोड़कर वो अपनी पत्नी और भाई के साथ वहां पर आया जहां पर परमेश्वर ने उसे जाने को बोला। इसलिए 7वें वचन में पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर वहां पर कहता है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा करके बोलता है। परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और कहता है, अब्राहम देख, यहाँ पर जहां पर आया है, इस देश को मैं तेरे वंश को दूंगा करके परमेश्वर ने वाचा पर अब्राहम को दिया। एक आशीष का वाचा, ये आशीष का वाचा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ा अच्छा काम, बहुत बड़ा अच्छा जीवन मैं जी रहा हूँ, प्रभु के वचन को सुन रहा हूँ, प्रभु के वचन को मैंने स्वीकार किया हूँ करके हम बहुत कुछ अपने आप को कह लेते हैं, लेकिन आपने अपने जीवन में उसको अनुसरण नहीं करते हैं। जीवन में आप सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम मिस किया है करके इस बात को हमें समझना है। इसीलिए, क्योंकि कभी कभी आप अपने जीवन में जांच कर देखिए, कभी आपने परमेश्वर के बातों को सुनकर उसे कभी अनुसरण नहीं किया, अपने जीवन में लागू नहीं किया, आपने अपने जीवन में बहुत सारे आशीष नहीं पाए हैं करके हम देखते हैं। और जब के परमेश्वर के वचनों को सुन के उसके अनुसार आपने चला है, तो आपके जीवन में आपने आशीष का अनुभव किया है करके हम देखते हैं। प्रतिदिन हर समय जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु के दास के वचनों को सुनते हैं, तो हो सकता है आपने परमेश्वर के वचन को सुना होगा, वो ग्रहण किया रहेगा। अगर आपने उसे अपने जीवन में उसको अनुसरण नहीं किया, तो आप जीवन में आशीष नहीं पाए हुए हैं करके इस बात को हमें समझना है। अगर हमारे जीवन में अगर आशीष होना है, हमें उसे प्रभु के वचन को अपने जीवन में अनुसरण करना, उसके अनुसार जीना ही ये पहली बात जो है अब्राहम को जीवन से हमें समझना है। प्रियो, प्रभु हमें ऐसे आशीष दे कि आज प्रभु अगर हमसे कुछ कहता है, हमेशा प्रभु हमसे कहता है, उसके वचन सुनने पर कहता है कि मेरे बच्चों, बुरे आदतों से आप दूर चले जाइए, छोड़ दीजिए। जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को उसके देश से उसे निकाला और छोड़ दे करके बोला, छोड़कर तू निकल जा, तो आज हमारे जीवन में बुरे आदतों से हमें छोड़कर बाहर निकलना है। बुरे संगति, बुरे दोस्त के साथ हमें हटकर दूर चले जाना है। हमारा जीवन एक अच्छा जीवन हमें जीना है। बुरे विचारों से हमें बाहर आना है, दुश्मनी से हमें बाहर आना है, बुरे योजनाओं से हमें बाहर आना है, बुरे गंदे बातों से हमें बाहर आना है करके हम देखते हैं। जब इन सारे बुराई से, इन सारे गलत कामों से अगर हम बाहर आते हैं, तभी परमेश्वर हमें
क्या करता है, अब्राहम को जैसे बोला इस देश को मैं तुझे तेरे संतान को दूंगा, वैसे परमेश्वर भी हमें वो आशीष करेगा करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, द सीक्रेट ऑफ ब्लेसिंग इज इन आवर एक्शंस। आशीषों का रहस्य अगर है तो वो कहाँ है? हमारे कार्य करने में, हमारे चाल चलन में वो प्रभु की आशीषों का रहस्य है करके इस बात को हमें समझना है। दूसरी बात हम देखते हैं, Abraham's obedience to God led him to sacrifice his son। परमेश्वर के प्रति अब्राहम की आज्ञाकारिता ने उन्हें अपने पुत्र का बलिदान करने के लिए प्रेरित किया करके हम देखते हैं। जब अब्राहम 75 साल का था, पहली बार परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, एक आज्ञा दिया कि तू अपने देश को छोड़ करके, और अब्राहम ने उसे देश को छोड़ दिया करके हम देखते हैं। और उस टाइम पर प्रभु ने से वाचा किया कि मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे ये देश दूंगा करके, संतान दूंगा करके उसने आशीष किया करके हम देखते हैं। और जब 100 साल हुआ तब हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने एक संतान दिया, ईसाक करके हम देखते हैं। और टोटल कितना साल हुआ? 25 साल। 75 साल में परमेश्वर उससे बातें किया। जब अब्राहम 100 साल का था, उसे एक बेटा दिया करके हम देखते हैं। 25 साल परमेश्वर के अनुग्रह में आज्ञाकारी बनकर अब्राहम जिया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, और जब परमेश्वर ने अब्राहम को अगर ईसाक बेटे के रूप में दिया है, वापस परमेश्वर अब्राहम को प्रकट होता है और दूसरी बार वापस परमेश्वर अब्राहम से मांगता है करके हम देखते हैं। एक कमांडमेंट करता है, एक आज्ञा देता है, और वो आज्ञा हम 22वें अध्याय उत्पत्ति उसके 1 से लेकर 10वें वचन में हम पढ़ते हैं। वहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। देखिए, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा ओम बलि करके चढ़ा करके। परमेश्वर ने दूसरी बार परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दिया कि तो अपना बेटा इसहाक को, जो एकलौता था, जो अब्राहम बहुत ही प्रेम करता था, उस बेटे को तू मेरे लिए होम बलि देने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा किया करके हम देखते हैं। कितनी बड़ी बात है प्रियो, जो अब्राहम सारा इतना जी जान से इसहाक को प्रेम करता था और एकलौता बेटा था करके हम देखते हैं। परमेश्वर उसे भी परमेश्वर मांग लिया, जो सैक्रिफाइस करने के लिए, बलि देने के लिए करके हम देखते हैं। अब्राहम के वचन में हम पढ़ते हैं, बिना वो देरी किए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, उसने परमेश्वर की उस दूसरी आज्ञा को भी उसने पालन किया, आज्ञाकारी बना करके हम देखते हैं। और उसने क्या किया मालूम है? दूसरे दिन तैयारी करके अपने बेटा को, अपने सेवकों को, जो भी बलि के लिए जो भी लगता है सामान, लकड़ी, कोयता, चाकू, सब कुछ तैयार कर वो निकल गया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, एक बार भी उसने सोचा नहीं कि प्रभु क्यों मुझसे ऐसा करता है, क्यों प्रभु क्यों मुझसे ऐसी परीक्षा करता है। हो सकता था अब्राहम परमेश्वर से याचना कर सकता था, प्रभु से विनती कर सकता था, प्रभु क्यों करके, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जबकि हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 18वें अध्याय के 16 से लेकर 33 वचन में
जब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि सोदोम गोमोरा को नाश करने के लिए, जब अब्राहम को मालूम पड़ा कि उसका भतीजा लोट और उसका परिवार वहां पर है, अब्राहम ने परमेश्वर के सामने विनती किया करके हम देखते हैं, गिड़गिड़ाया करके हम देखते हैं। उसको बचाने के लिए, उस देश को, सोदोम को बचाने के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, विनती किया। और परमेश्वर कहता है कि अब्राहम, अगर 50 से लेकर 5 लोग भी अगर नीतिवान है तो मैं तेरी प्रार्थना कबूल करते हुए इस देश को मैं बचाऊंगा। लेकिन दुख की बात है कि वहाँ 5 लोग भी नीतिवान नहीं थे, इसलिए सोदोम गोमोरा को परमेश्वर ने नाश किया करके हम देखते हैं। जब अब्राहम के भाग को इतना वैल्यू करता था, तो अब्राहम अगर परमेश्वर से प्रार्थना किया होता, विनती किया होता अपने बेटे के लिए, तो सचमुच परमेश्वर शायद वो सुनता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम जो है अपने आज्ञाकारी जीवन को उसको रखते हुए परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करने के लिए वो क्या किया, अपने बेटे को बलिदान करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए, होम बलि देने के लिए वो तैयार हो गया। उसका एक्शन देखिए, उसके कार्य देखो, उसका विश्वास, उसके आज्ञाकारी, उसका विधेयत्व, उसको क्या किया अमल में, प्रभु के प्रति आज्ञाकारी बनने में उन्हें सहायता किया करके हम देखते हैं। और प्रभु के हम आज वचन में हम पढ़ते हैं, वो चला और वो एक पहाड़ पर गया, मोरिया नाम का पहाड़ पर जाकर वहां पर अपना बेटे को सुलाकर वो बलि देने के लिए अपना तलवार या फिर चाकू लेता है। तब स्वर्ग से एक आवाज आता है, स्वर्गदूत का आवाज आता है। वो कहता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो कहता है कि 6वें वचन में, सो अब्राहम ने ओम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लदी और आग में छुरी को अपना हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इस तरह से हम आगे देखते हैं। तब यहोवा के 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, ए अब्राहम, ए अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसको छू कुछ कर। उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने, बस इतने पढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है उस लड़के को हाथ मत लगा और ना उसे कुछ कर करके बोलते, डू नॉट ले हैंड ऑन द बॉय, डू नॉट हर्ट हिम इन एनी वे करके परमेश्वर उसे बोलता है। मेरे प्रियो, वहां पर एक बात कहता है, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है करके। परमेश्वर का भय मानने वाला अब्राहम था करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन को हम देखते हैं, वो केवल आज्ञाकारी नहीं था, बल्कि वो परमेश्वर के भय में चलने वाला अब्राहम था करके हम देखते हैं। प्रभु परमेश्वर पर प्रेम करने वाला व्यक्ति अब्राहम था करके हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं जान लिया कि तू कितना मेरे भय में है करके, तू कितना मुझसे प्रेम करता है, तू कितना ओबीडिएंट है, तू आज्ञाकारी है, तू मेरे लिए मेरे आज्ञा का पालन करने को अपने इकलौता बेटे को भी तो देने के लिए तैयार हुआ। उस दिन परमेश्वर ने क्या करता है, दोबारा स्वर्गदूत अब्राहम को पुकारता है और कहता है कि, और वहां पर परमेश्वर का आज्ञा का एक प्रभु आशीष का जो वाचा है, द प्रॉमिसेस ऑफ ब्लेसिंग, वहां पर कंफर्म करता है करके हम देखते हैं। वो कंफर्म करने वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहोवा का दूत दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने यह शपथ खाता हूं। परमेश्वर खुद अपने नाम का शपथ खाकर अब्राहम को वाचा देता है, अब्राहम को प्रॉमिस करता है। क्या करता है देखिए, कि तूने
जो यह काम किया है, अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के भालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा करके कहता है। परमेश्वर अब्राहम के इस कार्य को जब देखा, अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गया, आज्ञाकारी बना, ये देखकर परमेश्वर से कहा कि मैं जान लिया, मैं तुझे निश्चय मैं आशीष करूंगा और तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा करके बोलता है। और परमेश्वर ये भी कहता है कि मैं आकाश में जितने तारे हैं, तारे से बढ़कर और समुद्र के रेत जैसा है उससे ज्यादा मैं तेरे संतान करूंगा करके परमेश्वर ने एक मुद्र, एक सील, प्रॉमिस का सील अब्राहम को देकर उसे आशीष किया करके हम देखते हैं। क्योंकि अब्राहम जो है परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। अब्राहम जो है प्रभु के आज्ञाकारी बेटा था। अब्राहम जो है परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था करके हम देखते हैं। उसके कार्यों को देखकर, उसने एकलौता पुत्र था। He gave the best, जो अच्छा उसका बेटा जिसे बहुत ही प्यार करता था, उसे अपने तक ना रखते हुए उसे परमेश्वर के लिए दिया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, our actions, our works, our deeds shows our character, our mind and who we are. हमारे कार्य में बताता है कि हम कैसे हैं, हमारे चाल चलन कैसा है, हमारी सोच कैसा है, हमारा जीवन कैसा है। अब्राहम प्रभु परमेश्वर से प्रेम करने वाला, गॉड फेयरिंग और आज्ञाकारी इंसान था। ये परमेश्वर जान लिया करके हम देखते हैं। आज परमेश्वर आज मुझसे और आपसे यही कहता है कि आज मुझे दो, आपके बच्चे दीजिए मेरे सेवकाई के लिए, आपके परिवार को दो मेरे सेवकाई के लिए, आपके पास जो भी है मुझे दो, आपके पैसा दीजिए मेरे सेवा के लिए, अपने जीवन दीजिए मेरे सेवा के लिए, मेरे कार्य में लगे रहे, प्रभु के राज्य के विस्तार करने के लिए अपने दान दीजिए, ऑफरिंग दीजिए। प्रभु मांगता है द बेस्ट, जो हम जो ज्यादा हम प्रेम करते हैं वो प्रभु से हम देना वाले बने। जैसे अब्राहम ने अपना इकलौते पुत्र को देकर प्रभु को प्रसन्न किया। मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझना है, इस बात को हमें समझ कर दिमाग में रखना है। सच्चाई ये है कि अगर प्रभु को हम अच्छे से अच्छा अगर हम नहीं देंगे तो हमारे जीवन में, पर्सनल लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, हमारे बच्चों के जीवन में, अपने हर एक कामकाज में हम प्रभु के आशीष को नहीं पाएंगे। परमेश्वर के लिए अच्छे से अच्छा अगर हम देंगे, करेंगे और जिएंगे तो परमेश्वर जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में हम जो भी करते हैं परमेश्वर वो आशीष देकर हमें वो चलाता है। जैसे अब्राहम ने अपने आज्ञाकारी जीवन में उसने परमेश्वर को अपना इकलौता पुत्र द बेस्ट था वो एक ही था, उसे देखकर प्रभु के ऐसे आशीष उसे पाया जो उसकी कोई आशीष को तोड़ नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जैसा आज हमारे जीवन में अपने जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को, अपने धन संपत्ति जो भी आपके पास है प्रभु के लिए दे दो, प्रभु की सेवकाई के लिए दे दो, प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करो। प्रभु आपको, आपके जीवन को, आपके कामों के जरिए से आपको प्रभु आशीष करेगा करके हम देखते हैं। और तीसरी बात हम देखते हैं, अब्राहम्स ओबीडियंस एंड एक्शंस लेड हिम टू बी ए ग्रेट मैन। परमेश्वर के प्रति अब्राहम की आज्ञाकारी और कामों ने उन्हें एक महान व्यक्ति
बना दिया। परमेश्वर, मेरे प्रियो, हर मनुष्य अपने जिंदगी में ये उम्मीद लगाता है, ये आस लगाता है कि मैं जीवन में कुछ अच्छा बनूं, अच्छा नाम कमाऊं, अच्छा इंसान बनूं, लोग मुझे जाने जाएं, लोग मुझे याद करें, लोग मेरे बारे में बोले, लोग मेरे सम्मान करें, मेरे आदर करें, मेरा रेस्पेक्ट करें, मेरा नाम हर जगह पर फैले और मैं सबकी नजरों में एक अच्छा इंसान बनूं, एक अच्छा नामचीन व्यक्ति बनूं करके ये हर इंसान उम्मीद करते हैं। उम्मीद करते करते जीवन जीते हैं करके हम देखते हैं। ये तभी हो सकता है जब परमेश्वर के लिए हम आज्ञाकारी जीवन जीते हैं, परमेश्वर के वचनों को हम समझते हैं, सुनते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, उसके अनुसरण करेंगे, तभी हम बड़ा होगा, हमारा नाम बड़ा होगा, हमें लोग याद करेंगे और हमें आदर मिलेगा करके देखते हैं। अगर हम प्रभु के आज्ञाकारी जीवन नहीं जिएंगे, उसके अनुसार हम अपने चाल चलन को नहीं चलेंगे, कभी आप बड़ा नहीं होगा। प्रभु कभी तुम्हें ऊपर उठाएगा नहीं, कभी तुम्हें फेमस नहीं करेगा, कभी तुझे सम्मानित भी नहीं करेगा। इस बात को आप अच्छी तरह नोट कीजिए, क्योंकि अब्राहम को आशीष परमेश्वर ने तभी दिया जब उसने किया कुछ। तो पहले प्रभु परमेश्वर कहा तो अपने देश को छोड़ दे, अपने रिश्ते नाते वाले को छोड़ दे, अपने जन्मभूमि को छोड़ दे, तो चले जा बोला। उसने चला करके हम देखते हैं। उसने ये नहीं कहा नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मैं सब कुछ यहीं पर रहूंगा, मैं तुझ पे विश्वास करूंगा, जो तू बोलेगा यहाँ पे बैठ करूंगा, ऐसा तो नहीं बोला। वो चला कर, वो चलने से ही आशीष आया। दूसरी बार हम देखा कि प्रभु परमेश्वर इसहाक को मांगा, बलि मांगा। क्या अब्राहम ने बोला नहीं प्रभु बाकी कुछ भी मांग, मैं अपने बेटा को नहीं दूंगा? ऐसा तो नहीं बोला, उसने किया करके हम देखते हैं, कार्य किया। और प्रभु ने उसे बोला मैं तेरे संतान को आकाश के तारों के समान और समुद्र में रेत के समान में बढ़ाऊंगा, आशीष करूंगा बोला। उसकी एक्शन, उसके कार्य उसको बड़ा किया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, तीसरी बात में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बड़ा नाम दिया। He became a great man, वो बड़ा इंसान बना, एक बड़ा विश्वासी बना, बड़ा नाम दिया। 3 बातें उनको दिया है। He was a righteous man, प्रभु के दृष्टि में वो नीतिवान ठहरा करके हम देखते हैं। प्रभु के दृष्टि में वो जो है वो क्या था, वो जो है वो विश्वासियों का पिता बना। He was a father of faith. He is a father of faith. उसका विश्वास आज वो विश्वासियों का पिता है। He's a father of our faith करके हम देखते हैं। रोमा उसके 4वें अध्याय के 16 और 17 वचन में हम देखते हैं। और तीसरा हम देखते हैं याकूब के पत्र उसके 2 अध्याय के 23 वचन में परमेश्वर ने उसे कहता है कि अब्राहम परमेश्वर का दोस्त बना। अब्राहम बिकेम ए फ्रेंड ऑफ गॉड। ये 3 टाइटल जो अब्राहम को परमेश्वर ने दिया, और इस 3 टाइटल ने अब्राहम को एक बड़ा इंसान, एक बड़ा फेमस इंसान बनाया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के दास अब्राहम के जीवन को हम देखते वक्त उसके अंदर रहने वाले अच्छी बातें यह है कि परमेश्वर के विश्वास में चलने वाला अब्राहम था करके हम देखते हैं। प्रभु की आज्ञाकारी में जीने वाला अब्राहम को हम देखते हैं। प्रभु के भय में चलने वाला अब्राहम को हम देखते हैं। और प्रभु को प्रेम करने वाला अब्राहम को हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर उसका नाम जो है बड़ा किया करके देखते हैं।
मेरे प्रियो, आज का जो वचन हमने पढ़ा है याकूब के पत्र उसके दूसरे अध्याय के 14 वचन से लेकर 26 वचन में, वहां पर हम ये पढ़ते हैं कि क्या पढ़ते हैं कि विश्वास करते हैं अगर हमारे अंदर कोई कार्य नहीं है वो मरे हुए समान के समान है करके वहां पर पढ़ते हैं। मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ प्लीज आप सभी को। आप लोग निकालिए याकूब के पत्र उसके दूसरे अध्याय के 21 और 22 और 23 वचन पढ़ते हैं। वहां पर सुंदर रीति से वहां पर अब्राहम के बारे में बताए गए हैं। देखिए याकूब के पत्र उसके दूसरे अध्याय के 21, 22 और 23। जब हमारा पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्म से अधर्म ना ठहराता? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसको कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ करके हम देखते हैं। और बाद में हम 23 वचन पढ़ते हैं। और पवित्र शास्त्र यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर के प्रतीत की और यह उसके लिए धार्मिक गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया गया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अब्राहम को इतने बड़ा नाम दिया, नीतिवान, प्रभु का दोस्त और परमेश्वर का विश्वासियों का पिता, एक आदरणीय नाम देकर प्रभु ने परमेश्वर उसे सम्मानित किया, उसे आदर किया, उसे उसका नाम ऊंचा किया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं और आप अगर एक अच्छा इंसान बनना है, प्रभु के दृष्टि में एक अच्छा नीतिवान बनना है, परमेश्वर का स्नेह बनना है, दोस्त बनना है, और लोग जब हमें देखते हैं कि अच्छा विश्वासी अगर कहें तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनकर जीना है। यू शुड बी ए फेथफुल पर्सन टू गॉड, गॉड फेयरिंग होना चाहिए और प्रभु से प्रेम करने वाला, जैसे अब्राहम के जीवन वैसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज अब्राहम के जीवन से हम ये जाना है, केवल सुनना, प्रभु की वजह सुनना और सिर्फ ग्रहण करना उतने ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में प्रभु के लिए कार्य करके वो साबित करना है, बताना है कि प्रभु देख मैं तेरे लिए क्या किया हूँ। प्रभु देखता है, जैसे अब्राहम को देखा और अब्राहम को आशीष किया। हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने उसे न बल्कि संतान दिया और उसके लोगों को जो कानान देश देने का वाचा किया वो पूरा हुआ करके हम देखते हैं। अपने लोगों को कानान देश में, वो प्रॉमिस वाचा के देश में परमेश्वर ने उन्हें लेके छोड़ दिया करके हम देखते हैं। बहुत साल लगा, 470 साल लगा करके हम देखते हैं, लेकिन 470 साल होने के बाद भी परमेश्वर ने अपना वाचा पूरा किया करके हम देखते हैं, उसने वादा पूरा किया करके हम देखते हैं। वैसे ही आज मैं और आप, हम सब लोग प्रभु परमेश्वर के विश्वासी होने के नाते आज हम ये जान ले कि आज्ञाकारी जीवन जीना हमारे जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, हमारे भविष्य जीवन में, संतान में, बच्चों के लिए वो आशीष का कारण हम बनते हैं करके इस बात को समझना। मेरे प्रियो, लास्ट में एक वचन पढ़कर मैं खत्म करना चाहता हूँ। याकूब के पत्र उसके दूसरे अध्याय के 26 वचन में हम पढ़ते हैं, जैसे देह आत्म बिना मरी हुई है वैसे विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। अगर आज हम कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ परमेश्वर के वचनों को, अगर हम नहीं करते हैं, उसके पालन नहीं करते हैं, तो फिर हम मरे हुए इंसान के समान हैं।
ये शरीर है लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं, मरा हुआ रहता है। वैसे ही अगर हमारे अंदर एक्शन नहीं है, काम नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, चाल चलन दिखाएंगे ना, अनुसरण नहीं करेंगे हमारे जीवन में, परमेश्वर आज्ञा के अनुसार अगर हम नहीं जिएंगे, नहीं चलेंगे, तो हम मरे हुए लोग के समान है करके समझना चाहिए। मेरे प्रियो, हम मरे हुए नहीं हैं। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है, वो जीवित है, वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है और जीवित परमेश्वर का बच्चे हम लोग हैं। अगर हम जीवित परमेश्वर का बेटा बेटियां हैं तो हमें उसके समान जीवित रहना है और परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी जीवन बनकर हमें चलना है। प्रभु इस वचन को आप सभी के जीवन में आशीष दें और उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर के वचन को जब कभी आप सुने, जब कभी आप पढ़ते हैं, प्रभु आपको प्रेरित करे उसके वचन को सुनने के लिए, उस वचन को स्वीकार करने के लिए और साथ ही साथ उस वचन को अपने जीवन में अनुसरण करके प्रभु की दृष्टि में आप एक आज्ञाकारी बेटा बनकर प्रभु की आशीष आपके जीवन में आप पाए जैसे अब्राहम ने पाया। प्रभु कर इस वचन को आप सभी के जीवन में आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान करुणमय दयालु पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दी है। पिता प्रभु, कितना महान परमेश्वर आप है पिता प्रभु जी की आपने हमें जीवितों की संख्या में रखते हुए हमें तुने आशीष करते हुए यहाँ तक ले आए हैं। प्रभु तेरे वचन को हम धन्यवाद करते हैं। पिता तू आशीष देने वाला परमेश्वर है। तेरे आशीषों का जो रहस्य हमारे कार्यों में छुपा है करके हम देखते हैं पिता प्रभु जी। प्रभु उन्हें दीजिए पिता प्रभु जी, हम सिर्फ तेरे वचन को सुनने वाले, पढ़ने वाले और उसे स्वीकार करने वाले इतने ही नहीं, बल्कि पिता प्रभु जी तेरे वचन को हमारे जीवन में उसको करने वाला, उसको अनुसार जीने वाला, अनुसरण करने वाले तेरे लोग बनने में तू आशीष कर। जैसे अब्राहम को पिता प्रभु जी जो कुछ आज्ञा आपने उसे दिया वो सिर्फ केवल न बल्कि सुना, न बल्कि उसे ग्रहण किया, बल्कि उसने किया, तभी आप उनके जीवन में इतने श्रेष्ठ आशीष देकर उन्हें आप आशीष किया करके हम देखते हैं। पिता प्रभु जी आज हमारा जो प्रेम आपके प्रति, हमारा जो विश्वास आपके प्रति, हमारा जो आज्ञाकारी आपके प्रति पिता जो भी है पिता प्रभु, ये हम अपने कार्यों में, हमारे एक्शंस में, हमारे अपने जीवन को तुझे समर्पित करते हुए, हमारे पारिवारिक जीवन को तुझे समर्पित करते हुए, हमारे टाइम, हमारे टैलेंट्स को तेरे सेवकाई में समर्पित करते हुए, और जो भी हमारे दान है जो तेरे सेवकाई को देने के जैसा आप हमें आशीष करने के लिए हमें तो सहायता कर, जिससे हमारे एक्शन से, हमारे कार्यों से पिता प्रभु जी तेरी आशीष हमारे जीवनों पर, हमारे पारिवारिक जीवन पर, हमारे बच्चों के जीवन पर वो आए, ऐसे हमारे प्रार्थना है आपसे प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे दोनों कलीसिया के लिए पिता प्रभु जी, शालोम और बेतेल के कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन परिवारों में तेरे अनुग्रह रख पिता प्रभु जी, प्रभु तेरी प्रसन्नता रखते हुए उन्हें चला रहे, धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। अब तक पिता उनको हर एक स्थिति में तू उन्हें छोड़ा नहीं पिता प्रभु जी, उन्हें संभाला है पिता प्रभु जी, उनकी संरक्षण की है पिता प्रभु जी, उनको उंगली पकड़कर तू अपने पकड़कर चला रहे पिता प्रभु जी। प्रभु तुझे कोटि कोटि धन्यवाद हो पिता प्रभु जी। प्रभु आत्मिक जीवन में बढ़ने का एक लालसा उनके अंदर दीजिए पिता प्रभु। जब तेरे वचन को पढ़ते हैं, जब तेरे वचन सिर्फ सुनने वाले ना बने पिता प्रभु जी, प्रभु तेरे वचन के आधार पर वो चलने वाले, उसे करने वाले और कर कर तेरे आशीष पाने वाले तेरे लोग बनने में तू उन्हें आशीष कर पिता प्रभु जी। उनके आत्मिक जीवन को बढ़ा पिता प्रभु जी, उनका आत्मिक जीवन को तू तंदुरुस्त कर, बढ़ाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी,
हमारे पूरे कलीसिया के एक परिवारों के जीवन को तू आशीष कर पिता प्रभु जी। जो भी स्थिति, जो भी जैसे भी है पिता प्रभु जी, तू उनके साथ रहकर उन्हें चला रहे हैं, से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी, हमारे सारे परिवारों में पिता तू हमारे किसी काम की, किसी बात की कमी घटी ना करते हुए तू हमारे सारे आशीषों को देते हुए चला रहे पिता प्रभु। जो कोई बीमार है पिता प्रभु, उन सभी को तू चंगाई देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। विशेषकर फिर एक बार आपके सम्मुख में पिता प्रभु जी मिसेस कमलम्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, तेरी अनुग्रह बना रहे पिता प्रभु जी। तेरे प्रसन्नता तेरे बेटे के ऊपर रखकर पिता प्रभु तू आशीष कर, तेरे हाथ बढ़ाकर पिता तेरे बेटे को छू कर पिता उनको तू चंगाई देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके जीवन से तेरी महिमा हो पिता प्रभु जी, उनके परिवार से तेरी महिमा हो पिता प्रभु जी। तेरी आज्ञाकारी जीने वाले तेरे लोगों के जीवन में तेरी आशीष बरसाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरी दृष्टि तेरे बेटे के ऊपर, कमलम्मा के ऊपर पड़े, ये मेरी प्रार्थना है पिता प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सौभाग्यम्मा के लिए पिता प्रभु जी। प्रभु जो बूढ़ी है पिता प्रभु जी, उम्र में बहुत ही बड़ी है पिता प्रभु जी, जो उस माँ को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उस माँ को भी तू आशीष कर पिता प्रभु जी। प्रभु बहुत ही कमजोर हुआ है, कुछ खा नहीं सकती पिता प्रभु जी, और सब जो भी खाती है वोमिटिंग होता है करके हम सुना है पिता प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, उस माँ को तेरे नाम से चंगाई दीजिए प्रभु। उनके जीवन को तू आशीष कर पिता, उनके परिवार को तू आशीष कर पिता प्रभु। हमारे दोनों कलीसिया के हर एक परिवार के सदस्य के जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु, उनको हर तरह से तू आशीष करते हुए, बच्चों को, जवान बच्चों को, स्त्री पुरुष सभी को तू आशीष कर पिता प्रभु। इस समय हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पूरे देश में तेरी अनुग्रह रहे, तेरी दृष्टि बना रहे, तेरे आशीष बना रहे, ये हमारी प्रार्थना है पिता। जो जो काम करते हैं पिता प्रभु जी, डॉक्टर, नर्सेस, हमारे सारे लीडर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमें सारे नेताओं के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, हमारे सारे जितने भी लोग एक दूसरे के प्रति सेवकाई कर रहे हैं, उन सभी को तो पिता तू आशीष कर पिता। इस लॉकडाउन में भी हम पिता अनलॉक होकर चल रहे हैं, जी रहे हैं पिता। हमारे आने जाना में जो भी काम करते हैं पिता प्रभु जी, प्रभु तेरे नाम की भलाई बढ़ाई हो, ये हमारी प्रार्थना है पिता प्रभु। जल्दी से पिता हमारे धार्मिक स्थल, हमारे प्रभु तेरे भवन खुले, ताकि पिता हम तेरे भवन में जाकर तेरी आराधना करने वाले तेरे लोग बनने में तू आशीष कर पिता प्रभु जी। प्रभु तेरे हाथों में हम सौंपते हैं इस विषय को, तू आशीष कर। धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे पूरे विश्व के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरे आशीष बनाए रख पिता प्रभु जी। प्रभु मांगे तो क्या मांगे पिता प्रभु जी, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर आप है पिता प्रभु जी। इसलिए पिता प्रभु जी सब कुछ, हमारे सारे चिंताएं, सारे भार, सारी बीमारी, सब कुछ तेरे साथ, तेरे सम्मुख में ले आते हैं। तूने कहा माँ, आपने कहा कि सारी चिंताएं मुझ पर डालिए, मैं चिंता करने वाला परमेश्वर हूँ पिता प्रभु। धन्यवाद हो पिता प्रभु जी। इस समय हम जो भी प्रार्थना में मांगी है पिता प्रभु जी, मेरे साथ मेरे सारे लोग भी प्रार्थना में जुड़े हैं, हम सभी का प्रार्थना सुनते हुए तेरे लोगों को तू आशीष कर, और तेरे आशीष हम सभी को ऊपर बरसाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस आने वाले सप्ताह पर तेरे हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमें आशीष कर, तेरी इच्छा प्रकार हमें चला, और तेरी इच्छा प्रकार हमें तू आशीष कर, ताकि हम तेरे आज्ञाकारी, तेरे भय भक्ति में, तेरे विश्वास में और तेरे प्रेम में जीकर तेरे आज्ञाकारी बच्चे बनने में तू आशीष कर। सारा मान गौरव हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रवेश मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ನೆನೆಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ನೆರವೇರು ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನ ಆಹಾರ ನೀಡು ಮಾದರಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಕ್ಷಮಿಸದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನೆನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೈಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು
ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಮಲಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸೌಭಾಗ್ಯಮಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಪ್ರಭು आप सबको आशीष करे.